So now here guys, we just learn one thing, that is we just go through one word, that is deep learning. Now what is deep learning? हम लोग उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, बट लेट मी जस्ट गेट एन इंट्रोडक्शन. व्हाट इज डीप लर्निंग? एक ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं. व्हाट इज डीप लर्निंग? सो विकिपीडिया सेज दिस इज डीप लर्निंग. सो विकिपीडिया सेज डीप लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग ब्रांच. सो दैट हम लोग उसको मशीन लर्निंग में डिस्कस करते हैं. Deep learning, or you can say that deep machine learning, or deep structured learning, or deep hierarchical learning, or something else. It's a branch of it's a branch of machine learning based on a set of algorithms. It's a branch of machine learning, so like based on set of algorithms. So हम लोग machine learning में इसलिए discuss कर रहे हैं because it comes under the umbrella of machine learning. Now here we have a set of different algorithms. Right now हम लोग एक ही algorithm से like familiar है, that is nothing but a perceptron algorithm. As I said, perceptron is an algorithm, neuron is a term. Okay, so neuron मतलब जो outcome model है उसको हम neuron बोलते हैं, but उसके लिए algorithm use होगा, that is perceptron algorithm. In a similar way, we have another algorithm that is actually back propagation algorithm. There are lots of algorithms we will discuss later on, but all these algorithms are actually used in a hidden layers. And deep learning having lots of hidden layers. Lots of hidden layers, that depends on you how many hidden layers you want to just deal with. So deep learning having some hidden layers, but in hidden layers there are some neurons, and neurons, to train the neurons, to deal with the neurons, what we required? We required some algorithm, and algorithms we just learn. Otherwise, we discussed one algorithm, that is a perceptron algorithm. In perceptron algorithm, we require two functions: integration function and activation functions. So like first consider on a first layer I have three neurons. In short, I just use three perceptron algorithms. In each perceptron algorithm we are using, otherwise we already used two things, that is integration function, other one is like nothing but an activation functions. So finally अगर पूरा conclusion करें, so deep learning internally multiple hidden layers होंगे, और हर एक hidden layer के अंदर हमारे पास neurons होंगे. neurons को develop करने के लिए कोई algorithm होगा. उस एल्गोरिथम के अंदर जस्ट लेट आई कंसीडर परसेप्ट्रॉन, उसके अंदर दो फंक्शंस होंगे. सो बेसिकली अगर एक न्यूरॉन ट्रेन करना आ गया, उसका बेसिक कांसेप्ट पता चला, तो बाकी सबके साथ हम डील कर सकते हैं. सो वी विल लर्न दिस वन इन डिटेल, बट राइट नाउ जस्ट हम लोग सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया ले रहे. व्हाट इज डीप लर्निंग? इट्स एन ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग which actually based on set of algorithms. So these are the algorithms: perceptron, back propagation, and etc. And that attempt to model a high level abstraction. What do you mean by high level abstractions? And in a data by using the model architectures. So what are the model architectures, and what is the meaning of high level abstractions? So guys, consider I want to just do an image processing thing. मुझे image processing करना है. Someone just say, okay sir, this is the actually flower data set. Okay, and that guy just give me a flowers, actually not the data set. उन्होंने मुझे flowers दिए. These are the flowers, just train your machine. And whenever the new training data set or query point comes in, your machine must predict a thing like which flower it is. So someone just give me an iris data, not the features. उन्होंने मुझे features नहीं दिए, petal length, petal width, sepal length, sepal width, ऐसे separate करके नहीं दिया. They just give me a 150 flowers, different flowers they just give me. Okay, or photos they just give me. So now the thing is, if I want to use decision tree, or if I want to use SVM to just train my model, otherwise to train my machine, what I firstly required? Firstly मुझे क्या करना पड़ेगा guys? Firstly हम लोग को अपने डेटा सेट में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अब तक जो भी एल्गोरिथम्स हम लोगों ने डिस्कस किए, in all this algorithm we require features. Without features we cannot do anything. Okay, तो अगर मान लो मेरे पास रो डेटा है, अगर मान लो मेरे पास रो डेटा अवेलेबल है, तो अप टू दिस हम लोगों ने जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लिए, वो जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में लेता है, जिससे दिस इज नथिंग बट एन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, दैट इज ML एल्गोरिथम. ओके, मैं यहाँ पे L लिख देता हूँ, दैट इज एल्गोरिथम. तो जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हम लोगों ने लर्न किए, उसको डायरेक्ट रो डेटा नहीं दे सकते. वी कैन नॉट पास अवर इमेजेस, वी कैन नॉट पास अवर ऑल द फ्लावर इमेजेस. ओके, इसके बाद वो हम लोग को एक मॉडल बना के देता था, एंड देन मॉडल के थ्रू हम लोग को प्रेडिक्शन मिलता था. दैट इज द थिंग. सो यहाँ हम लोग को प्रेडिक्शन मिलता था. सो नाउ रो डेटा डायरेक्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं दे सकते, जैसे कि डिसीजन ट्री, SVM, KNN एटसेट्रा थिंग, नेवबायस एटसेट्रा थिंग. सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम लोग को यहाँ से फीचर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे. हम लोग को यहाँ से फीचर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे. आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे डेटा पास ऑन कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द डीप लर्निंग? तो अगर आपके पास रो डेटा अवेलेबल है, अगर आपके पास रो डेटा अवेलेबल है, डायरेक्टली गाइस यू कैन जस्ट पास दिस रो डेटा टू डीप लर्निंग.
So here we have DL, not the ML. हमारे पास यहाँ पे DL होगा. Direct DL को pass करो onwards, it just create a model and it just used to predict something. So हम लोग को अब feature abstraction नहीं करना है. So that it just say deep learning is a branch of machine learning based on a set of algorithms, so perceptron, backpropagation, and so on, that attempts to model. This just try to like train a model on a high level abstraction of data. Okay, high level abstraction in the sense raw data you can just directly pass by using the model architecture. So these are the model architectures. Different things are there, like CNN, RNN, LSTM, like ANN. These are the things जो actually model architectures है. We will discuss that also in a later on, with complex structures or otherwise composed by multiple non-linear transformations. So just ignore the remaining things, but the thing is deep learning में हम लोग directly raw data pass कर सकते हैं. We have not to do the feature extractions actually. Okay, हम लोग को feature extraction करने की कोई जरूरत नहीं. Directly हम raw data pass करेंगे, it just predict something. So that's something about the deep learning. And guys, अगर हम deep learning को देखें कि ये एक्चुअली कैसे पॉपुलर हुआ और किस तरीके से उसमें मतलब इतना सारा लाइक आप देख रहे हो अभी राइट नाउ, जैसे मौलिक सर से लास्टली मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कहीं पे भी टेंसरफ्लो और डीप लर्निंग एटलीस्ट चाहिए. और मैंने उनको बोला था जब तक ANN कंप्लीट नहीं होता, न्यूरल नेटवर्क्स कंप्लीट नहीं होता, कहीं पे भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज वो रिज्यूम में होना चाहिए, इम्पैक्ट जनरेट करता है. रीजन इज सिंपल, तो एक बार रीजन देखते हैं. सो थोड़ा इमेज प्रॉपर नहीं आया, बट द थिंग इज 2012 में लाइक माइक्रोसॉफ्ट में एक सिंपल एक बंदा था, दैट इज एक्चुअली रसीद. It just given actually like one seminar type of things, one conference is just arranged in China, and China में उन लोगों ने actually English to Chinese language में conversion किया. So that guy just like input some English statements, otherwise उन्होंने mic रखा और कुछ English words बोलने शुरू किए, sentence बोलना शुरू किया, and guys उसको Chinese में बहुत proper way में pronunciation हुआ, बहुत लाइक प्रॉपर वे में, लाइक ऑलमोस्ट 90 to 100% एक्यूरेसी के साथ उसको चाइनीज लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट किया. सो ऑल आर सरप्राइज्ड एंड दे जस्ट आस्क व्हाट थिंग यू यूज्ड एक्चुअली. अप टू 2012 ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में 100% या 90% से ऊपर कन्वर्ट करें. दिस गाय जस्ट से वी यूज्ड डीप लर्निंग. दैट गाय जस्ट से वी यूज्ड अ डीप लर्निंग. दैट्स द थिंग. आफ्टर दैट द अनदर थिंग वाज हैपन इन ए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम ड्यूरेशन. Like I want to just in this image I want to just predict something, like मुझे कोई object को identify करना है, कोई object को identify करना है. I have different 5 labels. Okay, मेरे पास 5 different label है, जैसे कि ये बंदा कौन है, so that's a human or not, is it a person or some like table or some objects like that. So guys 2012-13 में deep learning में एक बंदे ने मॉडल, इन शॉर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने एक चीज रिप्रेजेंट की थी कि आप इजीली कोई भी या with actually high level of accuracy you can just identify a particular thing from an image. So that's also a deep learning. So इसने काफी अच्छा खासा impact generate किया. And more even right now जैसे हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या हमारे पास जो डिवाइस है like Siri and etc thing, so उन सब में भी deep learning ही यूज हो रहा है. हम लोग ऑर्डर देते हैं, ओए प्लीज जस्ट, जैसे अभी वो हेक्टर करके कोई कार आया हुआ है, हम लोग उसको भी ऑर्डर दे रहे हैं, like just open the sunroof and something, do this, start the AC and something like that. So what's that? हम लोग उसको भी ऑर्डर दे रहे हैं. सो देयर इज सम काइंड ऑफ डीप लर्निंग इनसाइड दैट. ओके, इवन तो हम मोबाइल को भी ऑर्डर देते हैं, लाइक किसी को मैसेज देना है, सो हम लोग बोलते हैं वो अपने मॉडल्स को लाइक टाइप करना है मुझे कुछ भी. ओके, सो हम लोग काफी सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हम बोलेंगे और वो टाइप कर देगा. हम लोग अपने मोबाइल में भी ऐसा करते हैं कि हम लोग बोलेंगे और वो टाइप करेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट, जैसे कि सीरी हो गया या लाइक एक्सबॉक्स हो गया. ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट. So हम लोग अभी लाइक कहीं काफी सारी जगहों पे डीप लर्निंग यूज कर रहे हैं. दैट इज एक्चुअली DNN, दैट इज डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली. तो काफी स्पीच इंडस्ट्रीज में भी अभी ये बूमिंग है. एंड इन 2015 एंड आफ्टर दैट 2013-14, अदरवाइज 2012-13 ड्यूरेशन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो बड़ी बड़े बिग शॉट्स है, ओके, यू कैन सजेस्ट एज फॉर्च्यून कंपनीज है, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ओके, और यू कैन से दैट एक्चुअली लाइक एप्पल हो गया. ओके, काफी बड़ी सारी कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी एक लेबोरेटरी, अपना एक ब्रांच स्टार्ट कर दिया डीप लर्निंग डेवलपमेंट के लिए. एंड वन मोर थिंग, गूगल ने एक डीप माइंड करके स्टार्टअप था, उसको पूरे को, दैट स्टार्टअप वाज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पूरे को $1,500 मिलियन में परचेस कर लिया, एक्वायर कर लिया. व्हाई? बिकॉज द थिंग इज दे वांट कि डीप लर्निंग में कुछ तो फ्यूचर है. ओके, सो सबने एक डेवलपमेंट स्टार्ट किया. और आपने भी ऑब्जर्व किया हो 2014-15 के बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पाइथन, इन सब का मार्केट बूमिंग है.
Reason is simple. All the guys required deep learning. Okay, all the guys required actually data scientists or data analytics. And इससे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा था? Now that's the question. Up to this ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा था? Because guys, before that हमारे पास इतने सारे डेटा सेट नहीं थे. आपने देखा परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम लाइक 60s में इंट्रोड्यूस हुआ है, 60s 70s में इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, देन स्टिल ये सब कुछ तब क्यों नहीं हुआ? अब इतनी बड़ी कंपनियों ने तब कामकाज क्यों नहीं किए? बिकॉज द फर्स्ट थिंग, हमारे पास इतना डेटा सेट नहीं है कि हम लोग अपने मशीन को ट्रेन करें. दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, लाइक 2010-12 तक हमारे पास ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे पास डेटा सेट नहीं था. सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज हमारे पास हाई कॉन्फ़िगर्ड मशीन नहीं थे. अब देख लो एक बार 2010 के आसपास जाओ, P4, P3, अदरवाइज कोर टू ड्यूल, समथिंग लाइक दैट, ये सब सिस्टम्स बूमिंग में थे. और उसके बाद एक टेक्नोलॉजी में बूम हुआ है, लाइक एक चेंजेस आया, एक रिवॉल्यूशन आया, i3, i5, i7, उसके बाद उसके जनरेशंस. ओके, लाइक अभी के सिस्टम्स तो और आगे बढ़ चुके हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक अब जैसे हमने गूगल कॉलएप यूज किया तो काफी सारे ऑनलाइन इस तरीके से अवेलेबल चीजें हैं, जैसे AWS आया. इन शॉर्ट लाइक काफी सारे क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई कि जहां पे अगर आपके पास हाई लेवल कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम नहीं है, हाईली कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम नहीं है, यू कैन जस्ट यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली. तो काफी सारी चीजें रिसेंटली डेवलप हुई है. ओके, सो दैट उस टाइम पे हमारे पास सबसे पहली चीज डेटा सेट नहीं था, मशीन नहीं थे हाईली कॉन्फ़िगर्ड, एंड थर्ड थिंग इज ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम नहीं थे. ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम नहीं थे, सो दैट इतना ज्यादा वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं मिला. 2012 में जैसे ये डिक्लेयर हुआ, ओ डीप लर्निंग इज यूज्ड फॉर दिस थिंग्स, सब लोग डीप लर्निंग की तरफ डाइवर्ट हुए. अगर नॉट ऑल द गाइज बट ऑलमोस्ट द बिग शॉर्ट कंपनीज, अदरवाइज फॉर्च्यून कंपनीज, वो उसके अंदर डाइवर्ट हुए. Now, most recent media reports 2015 just say deep learning catches on in new industries from fashion to finance. It's not a latest news right now, but मैंने एक वहां से स्नैप लिया हुआ है. ओके, कि लाइक काफी सारी कंपनी अभी फैशन टू फाइनेंस तक सब कुछ एक्चुअली डीप लर्निंग में जा रहा है. देखो कहीं पे भी, जैसे अभी मैं ऐसा बात करूं कि लाइक जावा में लाइक 2000 अदरवाइज 1999 और 2000 में हम लोग EJBs यूज करते थे, एंटरप्राइज जावा बिन्स. 2002 में स्प्रिंग इंट्रोड्यूस हुआ, 2001-2 में स्प्रिंग इंट्रोड्यूस हुआ. सो दैट इज द रिवॉल्यूशन फॉर जावा. पूरा चेंजेस आ गया था जावा के लिए. ओके, बट गाइस वो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए था. व्हाट अबाउट आर्किटेक्चर? उनको क्या फर्क पड़ा स्प्रिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ या नहीं? ओके, नाउ 2006-7 में स्प्रिंग बूट आया. सो वंस अगेन देयर इज आल्सो इन रिवॉल्यूशन इन द सेंस, आई मीन टू से कि काफी सारी टाइटली कपल चीज को लूजली कपल में हम लोग कन्वर्ट कर पाए. बट द वंस अगेन द क्वेश्चन इज, उससे फाइनेंस डोमेन को क्या फर्क पड़ा? उससे फाइनेंस डोमेन को क्या फर्क पड़ा? वो लोग जावा यूज कर रहे हैं, अदरवाइज डॉटनेट यूज कर रहे हैं, अदरवाइज PHP यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आइदर ऑफ द लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उनका काम कंप्लीट कराने के लिए. आपके लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आए, दे हैव नो प्रॉब्लम, लाइक उनको कोई इंपैक्ट जनरेट ही नहीं होता. आर्किटेक्चर को या एग्रीकल्चर को या फैशन डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डोमेन को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सिर्फ प्रोग्रामर, IT सेक्टर को इफेक्ट कर रहा था. बट व्हाट अबाउट डीप लर्निंग? एक बार डीप लर्निंग आया या मशीन लर्निंग में कुछ नए एल्गोरिदम्स आए, ओके, सबने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को यूज करना शुरू किया, गाइस हर एक डोमेन में इंपैक्ट जनरेट हुआ है. सो दैट राइट नाउ इट्स अ बूमिंग टेक्नोलॉजी. नाउ IBM pushes deep learning with the most upgrade. These all are actually like newspaper photos, but the thing is, all are just guys. All the big companies just try to like work in a deep learning or AI based things. I do not want to read all this, and actually, it's not readable actually. But deep learning is everywhere. You can just say. Okay.